Good morning, everyone. How are you all? Let's start your 11th class with a new first chapter of chemistry. Here, first chapter is some basic concepts of chemistry. So basically, in this chapter, we are going to learn about the some really basic concepts like mole concept, how like law of chemical combination, how matter interacts with each other. These types of things we are going to learn about this. So firstly, let's see the definition of chemistry. What is chemistry? chemistry is basically Chemistry is basically the study of matter. Basic definition we can say is chemistry is basically the study of matter. And what is matter? Matter is everything that surrounds us. Around Matter is everything around us is matter. You have already learned about the matter definition in the class 9th and 10th, but things which have mass and occupy स्पेस, तो ऐसी चीज जो कि जिसका मास होने वाला है और जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो डेफिनेटली उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली मैटर। और एक और डेफिनेशन भी कह सकते हैं हम लोग इसकी, क्या कि विच कैन बी फेल्ट बाय विच कैन बी फेल्ट बाय आवर five body senses, any of our five body senses। बेसिकली ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे फाइव बॉडी सेंसेस हम उसको फील कर सकते हैं। फाइव बॉडी सेंसेस आर देयर लाइक ईयर, नोज, स्किन, आईज एंड टंग। सो बेसिकली इन फाइव सेंसेस की हेल्प से अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि हम इसको फील, जो कि हम इसको सुन पाए, स्मेल कर पाए, स्किन से टच कर पाए, अपने आई से देख पा सकते हैं, टंग से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, तो उसको हम सिंपली मैटर बोलेंगे। सो ये तो बात है मैटर की। अब मैटर के पीछे जितनी भी कंपोजिशन छुपी है, प्रॉपर्टीज है मैटर की, वी कैन से दिस कंपोजिशंस, कि मैटर किस हिसाब से कंबाइन करता है, क्या कंपोजिशन होती है उसकी, फिक्स कंपोजिशंस आर देयर, प्रॉपर्टीज आर देयर, देयर प्रॉपर्टीज हो गया, उनके स्ट्रक्चर्स हो गए बेसिकली। सो ये सब चीज़ें जो है मैटर की क्लासिफिकेशन के अंदर जो चीज़ें आएगी मैटर, ये स्टडी सारी की सारी आएगी केमिस्ट्री के अंदर। सो बेसिकली केमिस्ट्री बेसिकली द स्टडी ऑफ मैटर। सो नाउ लेट्स सी सम मेजर एप्लीकेशंस ऑफ द केमिस्ट्री हियर। Some major application question can be directly asked like the write some major applications of chemistry in our daily life, like this. So let's start with the applications of chemistry in our daily life. Basically there are many applications are out there. As in the corona time, you already know that there must be vaccination here, sanitizers we are using. So these sanitizers basically are made from the ethanol. These sanitizers are made from the ethanol, which is like 70% ethanol, and other things like smelling agent or water. These types of things are there. So ethanol is used in the sanitizers. So, and also like for the health issues we are using the basically chemicals, or for the medicines we are using chemistry. Like the major application in the field of medicinal chemistry is that cisplatin is used for the cancer therapy, and there are many other medicines, drugs are there which are used for like many health problems out there. So in the health industry, chemistry is very useful subject. So also basically in the computer world,
in the mobile world, in the computer world, we are using our phones and computer laptops. In these basically chips are made of silicones. जो भी चिप्स होती है हमारी वो सिलिकॉन की चिप होती है बेसिकली। तो सिलिकॉन से मिलके बनी होती है वो चिप। एक बात तो ये। दूसरा बेसिकली जो हम बैटरी यूज़ करते हैं, बैटरी किसकी, लिथियम आयन बैटरी होती है हमारे पास। सबसे मेजर एप्लीकेशन जो है, अभी भी रिसेंटली नोबेल प्राइज़ भी मिला था इनको जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। सो काफ़ी चीज़ें हैं हमारी केमिस्ट्री में जो कि डेली लाइफ में बिना उसके रह ही नहीं सकते। और क्या हो सकता है बेसिकली, थर्ड पॉइंट कैन बी लाइक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी हो सकता है। एग्रीकल्चर में कैसे, एग्रीकल्चर में हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। बेसिकली इसके बने होते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं सारे के सारे। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर देयर यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस। सो इंसेक्टिसाइड्स भी हो सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। सो एग्रीकल्चर फील्ड में भी काफ़ी बड़ा स्कोप है केमिस्ट्री का। और अगर मैं बात करूँ फूड इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री, सो बेसिकली आप लोग आप जानते हो कि अगर कई बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, बेसिकली पैक्ड फूड मिलता है हमको, है ना, जो कि काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होता। उस पैक्ड फूड के रीज़न, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो बेसिकली उसके पीछे का रीज़न है प्रिजर्वेटिव्स जो कि हम यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स जो कि यूज़ करें, बेसिकली प्रिजर्वेटिव हमारे अचार में यूज़ होता है घर पे, जो हम ऑयल में डाल के रखते हैं उसको, है ना। सो बेसिकली पैक्ड फूड भी है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो कि बेसिकली क्या है, केमिकल्स ही तो है सारे के सारे। दीज आर केमिकल्स। सो पैक्ड फूड, पैक्ड मिल्क भी आता है आजकल अमूल का, जो 6 मंथ्स तक जो है बिल्कुल फ्रेश रहता है जिनसे, बिकॉज ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स इन दिस। सो नाउ अनदर industry which is using the chemistry nowadays is transportation. Also we can say transportation. In the transportation field, you already know that vehicles are running by using the fuel means petrol और डीजल। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे कहाँ से बनते हैं, जितनी भी गैसेज है हमारी यार, मतलब जितने भी होममेड सीएनजी यूज़ करते हैं, एलपीजी यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी क्या है, हाइड्रोकार्बन से मिलके बनी होती है। हाइड्रोकार्बन है सारी की सारी। इस पूरी जो स्टडी है इनकी, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन मीन्स इसमें बेसिकली कार्बन होता है और सेकंड हाइड्रो वर्ड कम्स फ्रॉम द हाइड्रोजन पार्ट। बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जितने भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो सारे के सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन है हमारे पास। सो बेसिकली इन्हीं हाइड्रोकार्बन से हमारे पास पेट्रोल, डीजल, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें इसी इन्हीं हाइड्रोकार्बन से मिलके बनी होती है। बेसिकली सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही उसमें मेजर कंपोनेंट है, जितने भी हमारे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब चीज़ों। सो काफ़ी हेल्पफुल है ये हमारे डेली लाइफ से को लेकर। Another application of the chemistry is basically in the homemade appliances, or basically there are many things we are using at the home, like PVC pipes are there which are used in the home, or while making homes we are using the bricks out there, bricks हो गया, cement, and there are many kind of plastics are there, plastics हो गया, steel हो गया, and there are many things which are using nowadays. So and copper wire also. So these are basic things which are we using in our day-to-day life, or which are very necessary for our day-to-day life. These are some basic daily life applications, but there are many vast applications at the industry level, at the bigger level out there. So there are many type, like I can, like if I talk about the hydrogen bombs and radioactive substances, so basically these are all from the chemistry. So hydrogen bomb जो है basically क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव है,
छोटा सा एटम जो है इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है कि क्या ही बोले। इसलिए केमिस्ट्री का काफ़ी जगह यूज़ है, बट मिस यूज़ भी बहुत होता है केमिकल्स को लेके। सो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री. सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक. So now basically let's see some classification of elements out there. So sorry, classification of matter. So firstly, if I talk about our universe is made up of two things basically. Two things. First is matter, second is energy. So दुनिया में जो भी चीज़ मैटर है, या तो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, नहीं तो उसका खुद का मास है तो वो मैटर है. अदरवाइज जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में वो किस फॉर्म की है, वो एनर्जी. लाइक अगर एग्जांपल दूँ आप लोगों को, मैटर का एग्जांपल दूँ तो कुछ भी हो सकता है. आई एम यूजिंग दिस पेपर, आई एम यूजिंग द पेन, आई एम यूजिंग दिस क्लिप बोर्ड, एंड आई एम यूजिंग माई फोन फॉर रिकॉर्डिंग. Man, lot of things are matter here. And the energy form, you can say energy like light, sound. These are the form of energy which cannot be called as the matter, because sound को हम लोग क्या है मैटर की फॉर्म में नहीं ला सकते. एनर्जी की फॉर्म है, वो हमको फील नहीं होता है जिन कोई चीज़. तो इसलिए लाइट एंड साउंड आर some types of energy examples. So in the matter case, first let's classify the matter on the basis of their physical or chemical compositions. Yeah, physical or chemical classification we can say. Firstly, I'm doing the physical classification out there. Physical classification. In the physical classification, basically physical classification is done on the basis of their physical nature. बेसिकली फिजिकल में बात करूँ, फिजिकली हम एक चीज़ एक चीज़ ही पे फोकस करते हैं, क्या, उसकी स्टेट पे. स्टेट मतलब किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है उसकी. हम लोगों ने 3 स्टेट्स पढ़े हैं बेसिकली, बट एक्चुअली में 5 स्टेट्स होते हैं. 2 स्टेट्स आर इन द, मतलब अभी रिसर्च चल रही है उनके ऊपर, क्या, बोज आइंस्टीन और प्लाज्मा बेसिकली. सो जो 3 स्टेट्स हम लोग पढ़ते हैं वो क्या क्या है. पहले तो सॉलिड, फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड, एंड द थर्ड वन इज गैसियस फॉर्म. सो आप लोग ये शायद 8th क्लास से आई थिंक सो पढ़ते आ रहे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसियस क्या होता है. तो बेसिकली मेन डिफरेंस इनके बीच में किस वजह से आता है, मेन डिफरेंस आता है इनके पार्टिकल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सो मेजर डिफरेंस जो मेजर रोल प्ले करता है इनको डिफ्रेंशिएट करने का, वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने वाली है तो डेफिनेटली इट विल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड. लाइक अगर मैं बोलूँ कि इसके मोलिक्यूल्स जो है काफ़ी पास पास है, मैटर के जो है मोलिक्यूल्स काफ़ी पास पास है, तो उसको सिंपली मैं क्या बोलूँगा, सॉलिड का एग्जांपल है. थोड़े से दूर चले गए बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम होगी, तो किसका एग्जांपल हो गया, एक लिक्विड का. और अगर ज़्यादा ही दूर चले गए, अगर मैं बोलूँ, वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, गैसियस फॉर्म का. तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम है, इसलिए वो एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे. अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन क्या करेगी, अट्रैक्शन एक दूसरे को पास, उन दोनों को पास लेके आएगी आपस में. बट अगर अट्रैक्शन नहीं है उन दोनों के बीच में तो डेफिनेटली वो आपस में एक दूसरे से दूर जाना पसंद करेंगे. सो मेजर रोल ये प्ले करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आउट देयर टू जज, टू टेल द फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैटर. बेसिकली मैटर बना कैसे होता है आप लोगों को पता होता है. मैटर इज मेड अप ऑफ जस्ट लाइक स्मॉल पार्टिकल्स लाइक एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इन्हीं से मिलके बना होता है ना. एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है बेसिकली मैटर. सो इसलिए यहाँ पे टर्म यूज करा मैंने, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और यू कैन ऑल्सो से इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आउट देयर. सो basically you already know some major things about the solid, liquid and gas. Like solid is a definite shape and definite volume. Solids have definite shape and volume out there. In this liquid we have definite volume but not definite shape. And in case of gaseous,
there is no definite shape and neither definite shape nor वॉल्यूम। ना तो इसकी शेप डेफिनेट होती ना तो वॉल्यूम, क्योंकि जिस भी कंटेनर में आप लोग इसको डालोगे वो उसी की शेप लेना पसंद कर लेगा। अगर मैं लिक्विड को एक ग्लास वाटर में डाल के रखूँ तो वो ग्लास की शेप मेंटेन रखेगा, बट उसको अगर मैं एक बड़े बीकर में डाल दूँ या बड़े पतीले में डाल, किसी भी बड़े कंटेनर में डाल दूँ तो उसकी शेप ले लेगा वो। इसी तरह गैसेस भी होती है। तो बेसिकली ये मेजर डिफरेंसेस आप लोगों को सब पता है, इसके बारे में आप ऑलरेडी स्टडीड कर चुके हो इसको 10th क्लास में। सो नाउ लेट्स, so on the basis of chemical classification there are major three type of matter are there. First is the element, second is compound, and the third one is mixture. Element, compound and the mixture. So basically एलिमेंट और कंपाउंड जो है ना वो बेसिकली आते हैं प्योर फॉर्म्स में, वो मिक्सचर की क्लासिफिकेशन में ही आते हैं। मिक्सचर इज अ डिफरेंट थिंग, बट एलिमेंट एंड कंपाउंड्स आर द प्योर substances, pure form, pure substances, we can say this. So first let's see what is element. So element is the basic part, we can say, of matter. Is like that कि ऐसी चीज़ जिसको ना तो डिकम्पोज करके हम सिंपलर सब्सटेंसेस में दोबारा तोड़ सकते हैं, ना ही सिंपलर सब्सटेंसेस से उसको फॉर्म कर सकते हैं। तो द पार्ट मैटर, अ टाइप ऑफ मैटर, वी कैन से अ टाइप ऑफ मैटर विच कैन नाइदर बी created nor be decomposed into the simpler substances। और सिंपल सब्सटेंसेस में उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं, क्योंकि एलिमेंट जो है बेसिक फॉर्म है, उससे नीचे कुछ नहीं है ना। तो इसको ना तो सिंपली सब्सटेंसेस तोड़ सकते हैं ना उससे बना सकते हैं बाय यूजिंग एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। यू कैन से बाय यूजिंग एनी मेथड, फिजिकल और केमिकल मेथड, कुछ भी हो सकता है, फिजिकल भी या केमिकल मेथड से हम इसको ना तो बना सकते हैं ना उसको तोड़ सकते हैं फर्दर। तो बेसिक पार्ट है एलिमेंट का। सो आप लोगों को पता है हमारे केमिस्ट्री में बेसिकली 118 एलिमेंट्स नोन है। सो मोस्टली जो एलिमेंट्स है वो हमारे बेसिकली अर्थ क्रस्ट में मिलता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 90% ऑफ द एलिमेंट्स नोन फ्रॉम द 118 एलिमेंट्स में से जो 90% है मोस्टली वो अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे हमको। बाकी जो 10% है वो हम लेबोरेटरीज में फॉर्म करते हैं किसी और चीज़। सो द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट are basically oxygen, silicon, aluminium, calcium, sodium, potassium. So the most abundant elements in our earth crust is oxygen. So सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। There are many elements out there which exist in our earth crust. So now let's see some another classification of elements. Like firstly let's see, so you already know about the types of elements out there which you have already studied in your 10th class. Like first जो type है element का वो क्या है, metals out there. Second one is non metals. Third one is metalloids. So basically आप लोगों को बताइए मेटल्स क्या होते हैं। जनरली लस्टर्स होते हैं, हार्ड होते हैं, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट लाइक दिस, है ना। मेटल्स जो है वो जनरली हार्ड हो गए, लस्टरस है, इजली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेजर डिफरेंस क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, जनरली दे आर नॉन लस्टरस एंड ब्रिटल इन नेचर। नॉन लस्टरस होते हैं बेसिकली, ब्रिटल नेचर के होते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, So the major portion of the periodic table of 118 एलिमेंट्स में से मेजर पोर्शन जो है वो मेटल्स का ही रहता है हमारे पास। ज़्यादातर जितने हैं मेटल्स हैं हमारे पास। और मेटलॉइड्स की बात करें तो बेसिकली मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर द कॉमन प्रॉपर्टीज
which are having the common properties of metal and non-metal, which are having common properties of metal and non-metal out there. बेसिकली ये तीन क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं. सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द chemical classification of the metal. Second one is the compound. So compound is basically a substance, we can say is a substance which is obtained by which is obtained by the you can say the by union of two or more type of element, to union you can say, or you can say combining of two or more type of elements. है ना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या कंपाउंड का एलिमेंट से मिलके बना है. सो बेसिकली टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स in a fixed proportion by mass, एंड एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, ये कैन बी डिकम्पोज इनटू द एलिमेंट्स. सो इट कैन बी decomposed into its constituent elements. अपने constituent element डिकम्पोज सकता है. अगर मैं आपको बोलूँ कैसे, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक H2O की बात करूँ अगर मैं, H2O is a compound because it is formed by two elements, like two types of elements are out there. First one is hydrogen, second one is ऑक्सीजन. सो अब इसको क्या हो सकता हूँ, अब एक टर्म और यूज करी मैंने यहाँ पे, है ना. यहाँ पे क्या सुटेबल, मैंने बोला कि डिकम्पोज्ड कैन बी इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, मतलब H2O को तोड़ के मैं हाइड्रोजन गैस और O2 गैस इजीली निकाल सकता हूँ, है ना. बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस करके मैं इजीली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट आउट कर सकता हूँ. सो बाई फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड अगर उसको कंपाउंड्स को हम उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में हम सिंपली जो है तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं. और एक और बात हमने टर्म यूज करा है यहाँ पे, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास और फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट, यू कैन से एनीथिंग. उसका मतलब क्या है, उसका मतलब देख लेते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि H2 जो है यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसका मास कितना होता है, आपको पता. हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन हैविंग मास 1 ग्राम यू कैन से. और 2 एटम्स का मास कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, क्या बन जाएगा 2. इसी तरह 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज हैविंग मास 16. सो 2 एटम्स का मास कितना होने वाला है, 16 इंटू 2 मीन्स 32, है ना, 32. सो बट क्योंकि हमें H2O फॉर्मेशन करना है, यहाँ पे H2O में कितने एटम्स, कितने हाइड्रोजन एटम यूज करे मैंने, 2, और एक ही ऑक्सीजन एटम यूज करा, तो यहाँ पे मैं मास जो कंसीडर करूंगा वो एक ही हाइड्रोजन एटम का करूंगा. तो बेसिकली क्या होगा, अब जब H2 फॉर्मेशन मुझे करनी है तो डेफिनेटली मैं H2 हाइड्रोजन लेने वाला हूँ और ऑक्सीजन लेने वाला हूँ, और किस रेशो में लूंगा वो भी डिसाइडेड है. कैसे, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास मीन्स क्या है, इसका मास कितना लिया 2, रेशो करेंगे किसके साथ, 16 के साथ. तो क्या बन जाएगा इसका, बेसिकली कैंसिल आउट होकर क्या बनेगा, 1:8. सो दिस इज द बेसिक fixed proportion by mass means this is the basic proportion of hydrogen and oxygen to form the water. So basically इसी proportion में मिलेंगे आपको. इसका मतलब क्या, H2 जो है वो H2O ही रहने वाला है. अगर बोलूँ पानी का फॉर्मूला H2O है तो H2O ही रहेगा, ना कि HO2 बन जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं H2O2, ऐसा कुछ नहीं. अगर H2O2 होता तो उसका तो ये ऑब्वियसली H2O2 होता है यहाँ पे, तो डेफिनेटली मैं 16 की जगह 32 लेता, तो इसका रेशियो है जो 1:16 बनता था. सो हर एक कंपाउंड का एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है बाय यूजिंग इट्स मास. सो अगर मैं बोलूँ इसका मतलब पानी में कहीं से भी उठाऊँ, आप लोग चाइना से उठा लो पानी, भाई पाकिस्तान से उठा लो, जहाँ से मर्जी उठा लो, गटर का पानी उठाओ, जहाँ से मर्जी उठाओ, बेसिकली हर एक टाइप
का जो पानी होगा उसका फॉर्मूला जो है वो H2O ही रहने वाला है। इससे जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका फिक्स प्रोपोर्शन होती है बाय मास। इसका मतलब ये कि उतने ही कंपोजिशन में वो आपस में मिक्स होंगे। तो मतलब क्या है कि मैंने H2 अगर लिया और दोनों गैस निकाली तो इसका सिर्फ एक ही एटम जुड़ने वाला है, एक ही प्रोपोर्शन मिलेगा इसका। दोनों एटम आपस में कंबाइन करके H2O नहीं बना सकते। अब ये बात होती नाउ बेसिकली अब बात करते हैं हम लोग अंदर कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की। कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड आर देयर। फर्स्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेकेंड वन इज द सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ कि दो टाइप के कंपाउंड फॉर्मेशन है। फर्स्ट तो है क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो यहाँ पे अगर बात करूँ, बेसिकली ऑर्गेनिक वर्ड ही यूज इसलिए होता है, ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग यही है कि वो लिविंग सोर्सेज से मिलकर बना। ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग यही है कि लिविंग, बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स विच आर obtained from the living which are obtained from living organisms, you can say लिविंग सोर्सेज से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो मिलेगा हमें। लाइक अगर एग्जांपल दूँ, हमको प्लांट से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, है ना, फैट्स हो गए, ऑयल हो गया। तो ये सारी किसके एग्जांपल है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है सारे के सारे, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग इजीली ले सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसी चीज़ है जो कि हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलके बनता है, या हम लेबोरेटरीज में उसका इन्वेंट करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्स, लिविंग सोर्सेज, या प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज। लेबोरेटरी में बनाया जाता है बेसिकली। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको लूँ तो काफ़ी एग्जांपल है इसके। जैसे बेसिक एग्जांपल जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़े होंगे वो क्या है, कॉमन सोल्ट NaCl, लाइक NaCl जो है, या उसकी बात करूँ मैं, वॉशिंग सोडा हो गया। सो ये सारे क्या है, इनऑर्गेनिक टाइप्स के जितने भी जनरली जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, सल्फर, इन सारे कंपाउंड्स को छोड़ के एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं अदर देन दिस, सो बेसिकली वो सारे के सारे ही हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। जनरली ये एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। बाकी सारे के सारे क्या है, बाकी सारे के सारे एक्सेप्ट दीज 6 एलिमेंट्स, मोस्टली सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली क्लासिफिकेशन थी कुछ। नाउ one last type remaining is mixture. So we will discuss about the mixture in the next video. This is up for today. Thank you so much everyone.